Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about class 11th biology chapter 1st. Class 11th biology chapter 1st, living world. Living world part 1st. Living world part 1st. This is the chapter first, the living world, and this is the part 1st. Okay, today we will discuss in this chapter in part 1 some materials like as what is the living, biodiversity, classification, taxa and taxonomy. Okay, let us start now. What is the living? When we try to define living conventionally, look for distinctive characteristic exhibited by living organism as grow, reproduction, ability to sense environment. This is the definition of living. Okay, what is the living things? Some things can move, some things can grow up, some things have sense against environments. This type of thing is the living things. So here we see about this living things. Grow means you can see a baby birth and they goes on child and they again goes on childhood and they again mature. So this step is the growing step. So all living things can grow. Second, reproduction. Reproduction is necessary for our survival. So all organisms like living things reproduce means make similar itself. So this have also a characters like as reproduction. Ability to sense means any organism sensitive for our environment. When they goes on cold areas, they sensitive, and they also goes on fire areas or hot areas, they also sensitive. So all living organism are sensitive. Okay, so this is the living things. Again, our next we discuss about biodiversity. What is the biodiversity? Each different kind animals are organism that you see represent a species. The number of species are known as describes range between 1.7 to 1.8 billion. This refer to biodiversity. What is the biodiversity? We easily thinks about this. What is the biodiversity? You can see different type of organism like as mammal. Mammal is different than reptiles, and reptile is also different to aves, and this aves is also different to the species. So all these organisms are different. This phenomena, they are different each other. They are the diverse each other.
So this diverse process is the biodiversity. Again, next we study about classification. What is the classification? Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognized groups such as plant or animals or dogs, insects, etc. What is the classification? Classification is a process in which we classify the animals and plants, their characters. We classify the organism, their characters. So this is the classification. Okay. And next we study about taxa. What is the taxa? All these dog, cats, mammals, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. The scientific term for these categories is taxa. What is the taxa? Taxa means this is the part of classifications. Okay, we see that taxa, different type of organism have different characters. So these are include a group. They are include a group against their characters. This is the taxa. Okay. And again, what is the taxonomy? All living organism can be classified into different taxa. All living things, organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. We classify the taxa. We also classify the taxa. This process is called taxonomy. So this is the definition of living things, biodiversity, classification, taxa and taxonomy. हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 11th बायो का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है ये लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसको इंग्लिश में आप लोगों को डिफाइन कर सकते किए हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो चीज़ हम लोग लिखे हुए हैं वो क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द लिविंग थिंग्स? जैसा कि आप लोगों के हम क्लास 10th में लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस हम लोग किए थे। इसमें भी हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स होते क्या हैं या लिविंग थिंग्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स वे थिंग्स होते हैं जो मूव कर सकें, ग्रो कर सकें और इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं। ये सारे जितने भी थिंग्स हैं वो क्या है? लिविंग। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो उस समय छोटे बच्चे थे, ग्रो किए, बढ़ने के बाद मैच्योर हुए, तो हम लोगों में क्या है? कैरेक्टर ग्रो करने का, बढ़ने का। उसी तरह से हर एक लिविंग थिंग्स में होते हैं। तो ये ग्रो है। सेकेंड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स वो अपने जैसे संतान को जरूर पैदा करेगा, है ना? अपने जैसे संतान को पैदा करेगा। तो ये प्रोसेस जो आएगा वो रिप्रोडक्शन है। प्रत्येक जीवधारी अपने
वंश को कायम रखने के लिए अपने जैसे संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। यही प्रोसेस क्या करवाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी तरह से उनके अंग जो डिफेक्ट हो जाते हैं तो वो नहीं कर पाए, तो वो डिफेक्ट में आएंगे, न कि ये आएंगे कि वो जो है उसके एबल नहीं, उसके कोई डिफेक्ट है तब ये ऐसा है। ठीक है। सो ये कैरेक्टर्स रहा ग्रो एंड रिप्रोडक्शन। और थर्ड आप देखेंगे सेंसिटिव। सेंसिटिव हो रहे मीन्स इन्वायरमेंट के प्रति वो क्या है, सेंसिटिव है। यानी कि अभी ज़्यादा ठंडक आए तो ठंडक एरिया में हम गए, ज़्यादा ठंडक लगने लगा तो हम वहाँ से वार्म एरिया की तरफ मूव करते हैं। वार्म एरिया की तरफ है तो हम किसकी तरफ मूव करते हैं, हॉट एरिया की तरफ मूव करते हैं। आप लोग देखते होंगे जब विंटर का डे आता है तो उसमें ज़्यादा हमको धूप अच्छी लगती है, क्या होते हैं हम सेंसिटिव होते हैं, उस विंटर के थ्रू क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और जब ज़्यादा हमें धूप लगने लगती है तो हम फिर कहाँ से चले जाते हैं, एक छाया में चले, शेडी प्लेस पर चले जाते हैं, छाया में चले जाते हैं। हाट आता है तो हम पंखा चला देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से सेंसिटिव हो रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस अगर आते हैं तो वो लिविंग थिंग्स है। ये सारे प्रोसेस आते हैं तो क्या हो, लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों का। अगेन देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स होती है जैव विविधता। हम विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं, कुछ स्तनधारी हैं यानी कि मैमल्स हैं, कुछ आप देखे होंगे एवीज हैं यानी कि पक्षी हैं, कुछ देखे होंगे आप पीसीज हैं जैसे मत्स्य हैं, मछलियां हैं, कुछ आप लोग रेप्टाइल देखे होंगे जैसे सांप वगैरह है। इनमें डिफरेंस है, ये एक दूसरे के प्रति क्या है, डिफरेंस है। ऐसे मिलियंस बिलियंस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे से क्या है, डाइवर्ट है। डाइवर्ट मीन्स इनसे अलग है। इसी प्रोसेस को अगर ये बायो ग्रुप में होता है, बायोलॉजिक यानी कि जीवों में अगर डाइवर्सिटी होती है, बायो में डाइवर्सिटी है, तो इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख लिए कि जीवों में जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। ये सारे कैरेक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे के बायोडाइवर्ट करते हैं और यही प्रोसेस बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। यानी कि जैव विविधता, जीवों में विविधता ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। ओके, अगेन क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, किसी भी क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। किसी भी एनिमल्स को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए उसके कैरेक्टर्स को जानने जरूरी होते हैं। तो वेरियस मिलियन बिलियन टाइप के आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो एक एक को पढ़ना जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो उनके कैरेक्टर्स को पहले हम लोग पढ़ते हैं। अब कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम उनको एक ग्रुप में डालते हैं, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको हम ग्रुप में डालते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मैमल्स हैं यानी कि हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी में रख देंगे। उसी तरह से एवीज हैं यानी कि जो फ्लाइंग कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, इनको हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी में रखेंगे। रेप्टाइल्स हैं जो क्या करते हैं, सड़क के चल सकते हैं, उनको क्या करेंगे, एक कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। तो ये हम इनको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। और वही प्रोसेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। क्लासीफाई कर रहे हैं और उसी को कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। यानी कि उनके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स स्टिक के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट टेक्सा। व्हाट इज द टेक्सा, टेक्सा मीन्स वर्गीकी। जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है जो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे स्पष्ट लिखा हुआ है कि all these dog, cats, mammals, wet rice plant, animals, etc. can convert categories we use to study organism. The scientific term is taxa. जो अलग अलग हम वर्गीकी को जो है क्लासिफाई करते हैं यानी कि उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या है, आपका टेक्सा है। वही क्या है, टेक्सा। टेक्सा मीन्स वर्गीकी, क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। टेक्सा मीन्स वर्गीकी एंड टेक्सोनॉमी मीन्स टेक्सा मीन्स वर्गीकी एंड क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। माने वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकी
जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसी प्रोसेस को वर्गीकी बोलेंगे, है ना। ठीक है, टेक्सोनॉमी, व्हाट इज द टेक्सोनॉमी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। डिफरेंट टेक्सा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिफरेंट टेक्सा में क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफाई करते हैं। डिफरेंट टेक्सा में हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीवधारी हैं, उनको हम एक टेक्सा में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। सो वी स्टडी इन दिस वीडियो in some definitions like as what is the living things, biodiversity, classifications, taxa and taxonomy. So it's okay.